Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. For listeners calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की तमाम आर्थिक गतिविधियां जिसमें शेयर बाजार भी हैं उस पर नज़र डालेंगे। आप आर्थिक गतिविधियों को लेकर सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें। श्रोताओं, ख्याल रहे हम किसी कंपनी विशेष के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस बता रही हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. EPFO adds over 16 lakh members in January, more than 8 lakh enrolled for first time. Major Asian stocks traded in red today. Japan's Nikkei index slumped 1.17%. And oil prices climb as heightened geopolitical risks exacerbate supply concerns. EPFO ने इस साल जनवरी में 16 लाख से अधिक सदस्य जोड़े। इनमें 8 लाख से अधिक पहली बार पंजीकृत हुए। एशियाई शेयर बाजार में गिरावट। जापान का निक्केई 1.17% लुढ़का और वैश्विक स्थितियों से आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में तेजी। Let's begin with the top story of the day. The Employees Provident Fund Organization EPFO added 16.02 lakh net subscribers in the month of January this year. According to EPFO's provisional payroll data released yesterday, around 8.08 lakh new members have enrolled during January 2024. In a statement, the Union Labour Ministry said a noticeable aspect of the data is the dominance of the 18 to 25-year age group, constituting a significant over 56% of the total new members during the period. It indicates that the majority of individuals joining the organized workforce are youth, primarily first-time job seekers. The gender-wise analysis of payroll data unveils that out of 8.08 lakh new members, around 2.05 lakh are new female members. Yamini, how do you see this particular data that has come out yesterday? 16.02 lakh new net subscribers in January, and out of which over 8 lakh are new subscribers. This is a very good data. Clearly indicates that there are more and more people who have subscribed to EPFO, and has been one of the indicators by the government indicating that there are employment figures much in line with their expectation, and giving a very positive direction to the way the youth
is getting accommodated by the economic growth that continues in the country. And also, it's out of the 8.08 lakh new members, the dominance, that is over 56% are 18 to 25 year age group. So, it shows that how the youth also are getting now in part of the organized economy as well. Well, yes, EPFO somewhere or the other does indicate how the youth is, a part of the organized economic system, and thereby considers the overall security in terms of its future through a sustained manner of giving a certain amount of their savings towards their future. And this is definitely a very encouraging figure in terms of the participation of the youth towards this system. And also, out of the 8.08 lakh, we see that over 2 lakh are new female members. So again, that's again another very positive sign so far as the economic, the participation of women is concerned in the economy. Yes, it does, because the women workforce has been constantly one of the workforces which is being sought after as the important contributors to the economic growth, and there has been a constant endeavor to bring them in the workforce by improving education or the rights that women have. And thereby, as and when we do see for the EPFO enrollments also, it does somewhere or the other secure their future with this economic system or the particular systems that exist in the organized setup. And before we move forward, let me repeat the numbers on the numbers that the listeners can call us on today. As you know, listeners, today is Monday. You can call us with your queries on business, economic and stock market matters. And the numbers are 2331 4444 and 23421050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. हाँ श्रोताओं, और आप सवाल पूछने के लिए हमसे 23314444 और 23421050 पे अवश्य फ़ोन करें। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से योगेश जुड़ गए हैं। योगेश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। प्रश्न पूछिए। सर, सवाल ये है मैम से कि ईपीएफओ में जैसे हम निवेश करते हैं तो मेरे पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है, तो क्या उसके पैसे को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में डालना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट है? जी देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यूजुअली आपके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और जहाँ पे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये पब्लिक को ऑफ़र होता है कि वो अपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करे, और बहुत सारे बैंक्स इसे ऑफ़र करते हैं जिसमें आप 1,50,000 तक निवेश कर सकते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एक एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें आप पैसा एक सिस्टमैटिक वे में या संयोजित तरीके से और निवेश कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तीनों ही फंड अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ज़्यादातर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉय के लिए जब वो एक ऑर्गेनाइज सेटअप में जुड़ते हैं। बाकी दोनों एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसा अपने फंड्स के लिए देना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या एनपीएस दोनों में ही निवेश कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस में करते हैं तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स की छूट भी मिलती है। And now let's go over to Kolkata, from where our next caller Vikash is calling. Vikash, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्ते, अपना सवाल पूछें। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मेरा निवेश है। ईपीएफ में? ईवी में, जी बताएं। जी तो 10% तो 15% वो करेक्शन हुआ, तो ये लॉन्ग टर्म मेरा निवेश है जी, तो इसमें निवेश करना चाहिए? जी देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं और जो क्लाइमेट स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनमें काफ़ी हद तक एक जो है आगे लॉन्ग टर्म
ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं और गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक सहयोग या सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो मार्केट पेनिट्रेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा है बट वेरिएबल कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से ये एक काफ़ी हद तक कंज्यूमर्स के लिए एक लाइकली ऑप्शन रहा है। तो इसमें ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। And at this point, let us go into a commercial break. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समय है एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानने का। एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई सूचकांक 1.17%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.72%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.62%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.16% लुढ़क गया। अंतिम समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। लंदन का फुट्सी 0.33% नीचे, फ्रांस का कैक 0.46% नीचे और जर्मनी का डेक्स 0.4% नीचे कारोबार कर रहा था। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से दिवांजल जी जुड़ गए हैं। दिवांजल, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्कार। रिन्यूएबल एनर्जी में मेरा निवेश है, अभी 50% रिटर्न दे रहा है करेक्शन के बाद। लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, कंपनी भी अच्छा है, तो ऐसे निवेश करना चाहिए, इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है और काफ़ी हद तक क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के तहत और भारत की जो कमिटमेंट है उसके तहत क्लाइमेट चेंज के जो महत्वपूर्ण कदम है उसमें देखा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी हद तक जो है माना जा रहा है कि एक सोर्स रहेगा क्लाइमेट चेंज को जो है कम करने में। और इसीलिए काफ़ी हद तक जितने भी आगे की बढ़ोतरी के स्रोत देखे जा रहे हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो या कोई भी एनर्जी सोर्स हो, उन्हीं को माना जा रहा है वो अब प्रेजेंट सोर्सेस को जो है आगे चल करके रिप्लेस करेंगे। अगर आपने सुना हो सोलर जो पैनल्स हैं उनको लगाने की बात की गई हो या उनको उनके अंदर सब्सिडीज़ दी गई हों या बाकी जो महत्वपूर्ण कदम है रिन्यूएबल एनर्जीज़ को लेकर के वो लिए गए हों, वो सभी इस सेक्टर को काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देते हैं। And the next caller is from Jaipur, Jitendra. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ मैडम, आप काफी दिन बाद हमको लगता है यहाँ आई हैं। तो अच्छा मैडम ये बताइए कि जैसे रेलवे सेक्टर का है और पावर सेक्टर का, दोनों गवर्नमेंट का ही है, उसके 200-250% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक करके कुछ निकले या टोटल कर दे या उसमें ऐड करें, क्या करना चाहिए? जी देखिए, दोनों सेक्टर काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं। रेलवे ख़ास तौर पे मोनोपोली सेक्टर है और फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आई है। डेवलपमेंट्स काफ़ी हद तक की गई हैं, चाहे वंदे भारत ट्रेन्स हों या आपके फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें, इन सभी का फ़ायदा रेलवे सेक्टर को पहुंचता है। अगर आप पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन हैं, जिसकी वजह से सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी काफ़ी हद तक कंसंट्रेशन है। और जिस तरीके से
तरक्की के सूत्रों में आप डिजिटलाइजेशन को देख रहे हैं या तकनीक को देख रहे हैं, उसमें पावर सेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, चाहे वो विलेज से इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के हो सभी जगहों पे, और या फिर 24/7 पावर सप्लाई की बात हो। इन सभी को देखते हुए दोनों का ही बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिशियल ग्रोथ है। लेकिन मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि मार्केट्स में काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव है। तो अपने लाभ के लक्ष्य को देखते हुए आप कोई भी ऐसी पोजीशन ले जो आपको लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ दे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रखे। इसी बीच कोलकाता से हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं। रवि, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते। नमस्कार। एफएमसीजी सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा होता है, मार्केट में इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। जी देखिए एफएमसीजी सेक्टर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है और काफ़ी हद तक जो इनकम्स हैं अब वो डबल अर्नर इनकम्स हो गई हैं, जिसके अंदर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी मार्केट काफ़ी हद तक बढ़ती है। भारत की जो पॉपुलेशन है उसको भी न देखते हुए जो एफएमसीजी सेक्टर वो है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहता है। इस सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स और नए सेगमेंट्स को जोड़ करके होती है। तो जो कंपनीज कंटिन्यूसली इनोवेट करती हैं, मार्केट करती हैं और ब्रांडिंग करती हैं, वो एक अच्छी फेवरेबल कंपनीज रहेंगी निवेश करने के लिए। Kolkata listeners seem to be monopolizing Market Mantra today because our next caller is also from Kolkata, Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to program. Please ask your question. Good evening. I am Atanu from Kolkata. Sir, ma'am, the matter is that the news on AIR app, it changed its features and also colorful. Thanks to Market Mantra and its apps that we are getting chance to download and listen it on after time, not on time, after time also. My question, ma'am, the result of quarter 4 and which sector would be lead in this area? And can you please repeat your question? What is? The quarter 4 result and quarter 4 result. Mm-hmm. And what sector would be lead in this area? Okay. And another one, ma'am, this is how do we reduce our mediclaim premium? Mediclaim, matter of insurance sector. What would be the road map to reduce our mediclaim premium? Right. Thank you. See, when we talk about quarter 4 results, they're more likely to be much or less stabilized. They do still give results in the positive territory, as has been indicated by many of the companies in terms of their sales. But there have been some concerns regarding the slowdown in terms of the automobile sector, which does indicate that there is an inventory stacking that is taking place and discounts are likely to happen. Also, when we talk about the March segment, since it's the closing segment, usually companies try to offload their inventories and try to build on the profits to look profitable in the annual balance sheets. As far as sectors are concerned, I think sectors like the sunrise sectors, which are specifically renewable energy, IT sector, as well as the pharma sector still play an important and a crucial role in the economy. Also important sectors would be the sectors which include capital goods and capital investments in the economy. When we talk about the Mediclaim premium, what's important and essential is when do you take the medical policy that is there, at what age group do you take, and what kind of a medical history do you have. A healthy person usually has a lower premium, and a younger person also has a lower premium. As one ages and takes a medical policy, the premiums amounts usually rise at that time. Regular checkups are also something that adds on to the value of the mediclaims, and no claims also add to the bonuses and a higher coverage. We have a next caller online from Maharashtra, but before we go over to Maharashtra, let's take a break.
मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra, where today we are taking calls from you, our listeners, on any queries that you have on business, economic and stock market matters. And to answer your queries, we have in our studio senior economist Dr. Yamini Agrawal. And now let's go over to Maharashtra, from where our caller Gurunath is online with us. Gurunath, welcome to the program. Please ask your question. जी मैम नमस्कार। नमस्ते, अपना सवाल पूछें। यामिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन है, अभी हमारे देश में चुनावी दिन है, चुनाव का समय है, तो मैम एक जो मतलब मार्केट का क्या मिजाज रहेगा, क्या बीच बीच में मतलब करेक्शन, अभी बीच में भी करेक्शन देखा गया, और 2-3 सेक्टर के जो बारे में थोड़ा सा बताइए कि अपना इन्वेस्टमेंट करना कितना उचित रहेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू। जी देखिए, जहाँ तक ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। देयर हैज़ ये भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया जा रहा है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और फास्ट पेस्ड इकोनॉमी है, और वर्ल्ड मार्केट्स में एक फास्ट पेस्ड इकोनॉमी की तरह कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। और जहाँ पे इलेक्शंस का सवाल है, अगर आप इलेक्शंस को देखें तो उनका खासा असर रहेगा कि जो पॉलिसीज़ पहले थीं वो आगे कितने हद तक और कितने सुदृढ़ तरीके से आगे चलती हैं और कैसे रहती हैं। पर इसमें ज़रूरी बात है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, जहां पर जो पीस मेकिंग संधि है गाज़ा और इज़राइल के बीच में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रशिया यूक्रेन वॉर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस है, चाहे वो रेड सी क्राइसिस है या और क्राइसिस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो कैसे प्ले करते हैं और क्रूड ऑयल की क्या प्राइसेस रहती हैं, वो बढ़ती हैं और किस हद तक बढ़ती हैं और फिर वापस आती हैं, तो क्या स्थिति रहती है। मार्केट्स ओवरऑल वॉलेटाइल रहेंगी, और अभी माना जा रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट्स काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड हैं और काफ़ी रिस्की भी हैं। पर अगेन फंडामेंटल्स जो है और की ग्रोथ फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे। जहाँ तक डोमेस्टिक स्थिति की बात है, वहाँ पे इलेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, हमारे संजय जी हैं कोलकाता से। नमस्कार संजय जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते। नमस्ते। इलेक्शन के पहले शेयर मार्केट में और करेक्शन होना जरूरी या आगे होगा ऐसा? जी देखिए, मार्केट्स ओवरऑल वॉलेटाइल हैं और काफ़ी हद तक इसमें अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फैक्टर्स का रोल है। अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, चाहे वो इज़राइल हमास की वॉर है, रेड सी क्राइसिस है, या रशिया यूक्रेन वॉर है, या क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना है, इन सभी का काफ़ी हद तक असर रहेगा मार्केट्स में, जिसकी वजह से हमें करेक्शंस भी मिलेंगी। दूसरे फैक्टर्स जैसे यूएस के जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है आना, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो फेडरल रिजर्व बैंक के 3 कट्स की उम्मीद की जा रही है इंटरेस्ट रेट्स में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। काफ़ी हद तक जो इलेक्शंस हैं, चाहे यूएस में हैं, यूके में हैं या इंडिया में हैं, उनका भी काफ़ी हद तक पॉलिटिकली क्या फ्रेम रहता है और किस तरफ झुकाव रहता है, और ओवरऑल क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सभी जो है मार्केट्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। And let's take the other news now. Oil prices in Asian trading received an uptick today on concerns over global supply constraints brought about by escalating conflicts in the Middle East and between Russia and Ukraine, while a shrinking US rig count added
to surge in price pressure. Brent crude oil futures was up by 0.57% and trading at $85.92, whereas Western Texas Intermediate gained 0.63% and was trading at $81.14. Yamini, we've been talking, of course, right now, our listeners also called in to ask you, and you also said that the crisis that is happening in the Middle East, the Red Sea, especially the situation there, that is, of course, affecting the oil prices. But also, how do you think, the OPEC earlier this month decided to extend the voluntary oil output cuts by 2.2 million barrels per day into the second quarter, that is till the end of June. How much is that going to affect the oil prices? That is also going to affect the oil prices quite a lot, because already the Red Sea crisis is not allowing the crude oil to be, made available to the particular economies, and further the supply cuts by the OPEC is likely to raise the prices of oil in the overall market. Again, geopolitically, how does it really unfold? Especially the peace making efforts will play the key role in deciding how the crude oil really help. Further, a lot of stress is being put on the renewable energy sources, so people are also shifting. So where if crude oil becomes too expensive, then the faster track in terms of moving to renewable energies may be one of the options that many other economies may choose to avoid oil spikes. And the caller online now is from Kolkata, Mr. Tapas. Mr. Tapas, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yeah, sure. Madam, that there are so many good news for that PF, number of PF and all these things that is increasing, GDP also increasing. But that our, the rupee, that is just beyond all these things, that is high to about 83.6. Your voice is echoing. If you can please repeat your question. And can you make it short because we're running out of time? So actually that now rupees against dollar, that is 83.61. That is the highest ever. My question is that how it will be reduced? Is there anything we are thinking about that? This is my question. That is the only question. Okay. Thank you, ma'am. See, when we talk about rupee versus dollar, it's the exchange rate which is determined by the market forces, which clearly indicates the demand of dollar versus the demand of rupee. So as the rupee tends to devalue, it clearly indicates that the dollar is more demanded than rupee. As far as RBI is concerned in terms of the stability, you would have heard that RBI maintains a good forex reserves of about 600 billion plus. Also, the IMF has recently identified India as a currency stabilizer in terms of ensuring that the rupee maintains a certain amount of a stability in the exchange market. Again, when we talk about rupee versus dollar, it will still be dependent upon the market forces, how the FIIs, FDIs and various other important macroeconomic indicators play an important role. अब सोना और चांदी का हाल जानते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध के लिए आज सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। सोना 229 रुपये बढ़कर 66,087 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी 113 रुपये बढ़कर 74,900 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $2,196 और 10 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में चांदी भी $24 और 85 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in the program. Yamini, thank you so much for coming to the studio and answering the queries of our listeners. Thank you. धन्यवाद यामिनी जी। And before we close, a reminder of the headlines. EPFO adds over 16 lakh members in January, more than 8 lakh enrolled for the first time. Major Asian stocks traded in red today. Japan's Nikkei index slumped 1.17%, and oil prices climb as heightened geopolitical risks exacerbate supply concerns. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. नमस्कार। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए
आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. लोक निर्णय 2024